Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System. Today is lecture number 12 for the course of Reinforced Concrete Design 2. This course is generally for BSc Civil Engineering. I myself, Engineer Dr. Muhammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today is lecture number 12 and week number 12. So in our today's lecture we will continue our discussion on pre-stressing losses. जो remaining pre-stressing losses के types जो रह गए हैं उनको आज हम डिस्कस करते हैं. उसके बाद हम डिज़ाइन एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे. These are your reference text books. इन बुक्स के अलावा अगर आपके पास कोई और बुक pre-stressing concrete के हवाले से अवेलेबल है तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं. This is a summary of the previous lectures. We already have a broad discussion on the pre-stressing methods and pre-stressing concepts and principles. Then we discussed about the tendon profiles and different components, जो components, anchorage systems and जो jacking stresses हम किस तरह से provide करते हैं, ये तमाम चीज़ें हम already discuss कर रहे हैं. Then we discussed about the materials basically used for the pre-stressing concrete and pre-stressing steel के different types, codes, standards भी हमने discuss किए. And in our last class we discussed about the pre-stressing losses. So in our today's lecture we will continue discussion on our on the pre-stressing losses, and then we will go for the design examples for pre-tension and post-tension members, how we calculate the losses of pre-stressing in pre-tension and in post-tension members. And regarding pre-stressing losses हमने पिछली क्लास में इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस को डिस्कस किया और इलास्टिक शॉर्टनिंग किस तरह से अपीयर होता है प्री टेंशन एलिमेंट्स के अंदर, उसको हमने कैलकुलेट भी किया इटसेल्फ एज अ सेपरेट एज अ इंडिपेंडेंट लॉस. एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट द creep of the concrete losses, how creep of the concrete generated into the structure, और इंडिपेंडेंटली किस तरह से हम उसको कैलकुलेट करते हैं वो भी हमने डिस्कस किया. And then we discussed about the steel relaxation losses. So now in our today's lecture we will continue our discussion on the pre-stressing losses. जो remaining types बच गए उनको आज हम डिस्कस करते हैं. So our remaining type, major important type here is the shrinkage loss also. So shrinkage basically is appear into the concrete कि with the time dependent property of the concrete ये consider होती है, और with respect to the time concrete के अंदर एक reduction और एक reduction into the volume और contraction develop होती है. So therefore the magnitude of the shrinkage in concrete basically is affected by the several factors. Actually जो आपकी shrinkage है वो normally appear होती है with respect to the environment, moisture movement होती है material के अंदर से. जो आपका पानी है, इंटरनल वाटर है, वो इवापोरेट हो जाता है और कंक्रीट जो है वो सुकड़ना स्टार्ट करता है. तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ओवरऑल मैग्नीट्यूड ऑफ द श्रिंकेज को? दीज फैक्टर्स बेसिकली इन्वॉल्व द मिक्स प्रोपोर्शनिंग ऑफ द मिक्सचर. जो आपने कंक्रीट बनाई उसके अंदर जो बेसिक कंपोजिशंस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैं, उनसे ये श्रिंकेज जो है वो स्टार्ट होती है. वो एक पॉजिटिव और मेजर रोल प्ले कर रहे होता है. Even आपका type of aggregate, even of the type of the cement, even the coarse aggregate का total ratio with respect to the fine aggregate and total aggregate का ratio किस तरह से affect करता है. Even the type of the cement in terms of rapid hardening Portland cement, normal ordinary Portland cement, अगर आप कोई additional admixtures के तौर पे mineral admixture as a cementing agent use कर रहे हो तो वो भी shrinkage को affect करता है. Then we have a curing time, और curing time स्टार्टिंग टाइम है, उसके बाद जो है वो एंडिंग टाइम है, कितनी ड्यूरेशन के लिए आपने क्यूरिंग अप्लाई की. देन वी हैव एप्लीकेशन ऑफ प्री-स्ट्रेसिंग कि प्री-स्ट्रेसिंग मेंबर के अंदर जब हम अप्लाई की तो वो किस तरह से जो है वो श्रिंकेज को अफेक्ट करवाता है. देन वी हैव अ साइज ऑफ द मेंबर, ओवरऑल ज्योमेट्री ऑफ द एलिमेंट एंड द एनवायरमेंटल कंडीशंस. तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो कि आपके श्रिंकेज की जो वैल्यू है, श्रिंकेज की जो मैग्नीट्यूड है, उसके ऊपर ये डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, ये डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं, और श्रिंकेज की वैल्यू इन तमाम फैक्टर्स से कनेक्टेड है. देन वी हैव द साइज एंड शेप ऑफ द मेंबर आल्सो अफेक्ट्स द श्रिंकेज मैग्नीट्यूड. कि size and the shape, approximately 80% of the shrinkage normally appears into the final year of the structure. जो डिज़ाइन लाइफ है आपके ओवरऑल स्ट्रक्चर की, लेट्स सपोज हमने एक रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाया जिसकी डिज़ाइन लाइफ 40 years है, तो जो श्रिंकेज आपकी जो मैक्सिमम इंटेंसिटीज डेवलप होती हैं वो लास्ट फ्यू ईयर्स के अंदर होती है.
वो इसलिए कि आपके वहाँ पे मटेरियल्स जो हैं वो वीकर हो जाते हैं, उसकी डिज़ाइन लाइफ जो है वो ओवरऑल स्ट्रक्चर की रिड्यूस होती जाती है। सो देयरफॉर फॉर दैट पर्पस ACI ने हमारे पास जो है एक रिकमेंडेशन प्रोवाइड की कि यू हैव टू कंसीडर एन एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टीमेट श्रिंकेज स्ट्रेंथ इन बोथ कंडीशंस, इन मॉइस्ट क्यूरिंग एंड इन स्टीम क्यूरिंग कंडीशंस। आपके पास 780 माइक्रो स्ट्रैंड की जो एक श्रिंकेज की वैल्यू अल्टीमेट या मैक्सिमम वैल्यू आपको सजेस्टेड है। However, this average value is affected by the length of initial moist curing, ambient relative humidity, volume to surface area ratio, temperature and the concrete composition. क्योंकि अब सिर्फ हमारे पास एक अल्टीमेट वैल्यू तो 780 माइक्रोस्ट्रेन आ गई, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास वेरियस अदर फैक्टर्स आ गए, वेरियस अदर जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आ गए, जिनके अंदर आपकी इनिशियल मॉइस्ट क्यूरिंग आ गया, इनिशियल जो है वो आपकी कंडीशंस आ गई, कंक्रीट की कंपोजिशंस आ गई, वॉल्यूम टू सरफेस एरिया ऑफ द मटेरियल आ गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ गई, टेम्परेचर का इफेक्ट आ गया, टोटल फाइन एग्रीगेट टू टोटल एग्रीगेट का रेशो आ गया, इवन द साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट आ गई। तो ये तमाम जो फैक्टर्स थे, इन फैक्टर्स की वजह से सर्टेन एक श्रिंकेज की वैल्यू जो है वो अफेक्ट होना स्टार्ट हुई। सो देयरफॉर टू टेक इनटू दैट कंसीडरेशन कि जो डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उनके लिए एक फैक्टर इंट्रोड्यूस कराया गया, करेक्शन फैक्टर, जिसको हम ρSH से रिप्रेजेंट कराते हैं। ρSH बेसिकली इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 वेरियस फैक्टर्स। 7 वेरियस फैक्टर्स किस किस टाइप के? टाइप ऑफ द सीमेंट का फैक्टर, कोर्स एग्रीगेट का फैक्टर, उसके बाद क्यूरिंग का फैक्टर, देन वी हैव वॉल्यूम टू सरफेस एरिया रेशो फैक्टर, उसके बाद हमारे पास जो है वो एक और फैक्टर आ जाता है इसके अंदर जो है वो फॉर एग्जांपल वी हैव फाइन एग्रीगेट टू टोटल एग्रीगेट कंटेंट का फैक्टर। तो इस तरह से हमारे पास टोटल वेरियस 7 फैक्टर्स हैं जो कि एक करेक्शन फैक्टर डेवलप हुआ, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारी टोटल इंटेंसिटी के साथ और अल्टीमेट श्रिंकेज की एक वैल्यू आ जाती है। सो द प्री स्ट्रेस कंक्रीट इंस्टीट्यूट, ये हमारे था नॉर्मल कंडीशंस के लिए। उसके बाद प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए मजीद एक मार्जिन प्रोवाइड किया गया कि एवरेज वैल्यू फॉर द नॉमिनल अल्टीमेट श्रिंकेज मस्ट बी सिलेक्टेड एज 820 माइक्रोस्ट्रैंड, because if ultimate shrinkage basically strain for adjusting for the relative humidity at volume to surface area ratio, the loss in pre-stressing in pre-tension member becomes, the pre-stressing के अंदर जो losses जनरेट हुए due to shrinkage basically is equals to shrinkage strain into the modes of elasticity of the steel, जो आपका pre-stressing steel है। तो pre-tensioning या pre-stressing basically was एक हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म था, एक सेंसिटिव मैकेनिज्म था। उसके लिए हमने जो श्रिंकेज की वैल्यू नॉर्मल कंक्रीट की थी उसको प्री स्ट्रेस कंक्रीट वाले इंस्टीट्यूट्स ने इग्नोर कर दिया और हमारे पास एक नई वैल्यू आ गई 820 माइक्रोस्ट्रैंड की, और उसको हमने कंसीडर किया। Then we have for post tension member the loss in pre-stressing due to shrinkage is somewhat less since some shrinkage has already been taken place. A pre-stressing loss in post tension members, पोस्ट टेंशन मेंबर जिसके अंदर टेंशनिंग हम बाद में प्रोवाइड करते हैं, कंक्रीट हमारा पहले बन चुका होता है, उस केस के अंदर भी एक सर्टेन वेरिएशंस आ गई थ्योरीज के अंदर कि कंक्रीट जैसे ही आपने बनाया इवन आफ्टर फ्यू आवर्स श्रिंकेज डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, in terms of plastic shrinkage, in terms of carbonation shrinkage, in terms of drying shrinkage। तो इस वजह से पोस्ट टेंशन मेंबर के अंदर हम स्ट्रेसिंग तो बाद में प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमारा जो मेंबर है वो जैसे ही कंक्रीट आपने बनाई वहीं से जो श्रिंकेज है बेसिकली वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। उस केस के अंदर प्री स्ट्रेस कंक्रीट इंस्टीट्यूट जनरली प्रोवाइड एन एक्सप्रेशन फॉर द प्री स्ट्रेसिंग ड्यू टू श्रिंकेज लॉसेस। दैट एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू जो 820 माइक्रोस्ट्रैंड थी उसको हमने कंसीडर किया 8.2 माइक्रोस्ट्रैंड इनटू द कोफिशिएंट ऑफ द श्रिंकेज, and then we have a modulus of elasticity of the pre-stressing steel, and then we introduce 2 other factors here, volume to surface area ratio and the relative humidity। volume to surface area ratio आप एलिमेंट का रेशो कंसीडर करते हैं और relative humidity बेसिकली आपकी डायरेक्टली कनेक्टेड है विद द एनवायरनमेंट। वॉल्यूम टू सरफेस एरिया रेशो बेसिकली हम इस तरह से लेट सपोज वी हैव अ बीम, तो जो बीम की ओपन एक्सपोज्ड जो सरफेस है टू द एनवायरनमेंट उसका हम एक टोटल वॉल्यूम लेते हैं ओवरऑल स्पेसिमेन का, और सरफेस जो एक्सपोज्ड एयर की तरफ है एनवायरनमेंट की तरफ है उसका हम आपस में एक रेशो लेते हैं। एंड in table we can see here we have various types of shrinkage coefficients for the post tension members, shrinkage coefficient depending on the time of curing
1 day, 3 days, 5 days and up to 60 days curing, and shrinkage coefficient is value is varying from 0.9 to 0.45. तो इन तमाम वैल्यूज में से हम जो सजेस्टेड एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं हमारे स्ट्रक्चर एलिमेंट के लिए. सो नाउ श्रिंकेज बेसिकली इज अ मैकेनिज्म जो कि एवापोरेशन हो जाती है, जो पानी मौजूद होता है कंक्रीट के अंदर वो एवापोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से मेंबर आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. अब ये प्रोसेस जो डेवलप हुआ बेसिकली ये लाइक इलास्टिक शॉर्टनिंग जो हम ऑलरेडी पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे हैं कि इलास्टिक शॉर्टनिंग की वजह से जो एलिमेंट आपका शॉर्ट हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. एग्जैक्टली इसी तरह से जब आप श्रिंकेज अपीयर होती है मेंबर के अंदर तो मेंबर भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपका जो एलिमेंट होता है या प्री-स्ट्रेसिंग जो बार है वो इटसेल्फ भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और जिसको हम लॉस कंसीडर करते हैं. तो बेस्ड ऑन डिफरेंट मैकेनिज्म्स फॉर प्री-टेंशन मेंबर्स, transfer of pre-stressing force commonly takes place after 24 hours after casting and nearly all shrinkage takes place after that. क्योंकि प्री टेंशन के अंदर आप प्री टेंशनिंग आप पहले प्रोवाइड कर चुके हो, उसके बाद आप कंक्रीट बनाते हो, कंक्रीट आपका उसके बाद जाहिर है कंक्रीट बना उसके बाद वो सुकड़ना स्टार्ट करता है. सो देयरफॉर एन एवरेज श्रिंकेज वैल्यू इन कंक्रीट इज इक्वल टू 0.0003 माइक्रोस्ट्रैंड. However, for the post-tensioning member, stressing may take place after 1 day or much later. Thus, the large percentage of shrinkage may taken place by that. So, therefore, average shrinkage value of concrete जो है वो 0.0002 microstrand consider होती है in the case of post-tension members, and in the case of pre-tension we have 0.0003 microstrand value consider होती है. तो ये हमारे पास वेरियस रेंजेस थी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस जो कोर्स ने सजेस्ट की. इन वैल्यूज को हमने यूटिलाइज करना है फॉर द लॉसेस कैलकुलेशंस. हम किस तरह से इनको यूज करते हैं आगे हम इसको मजीद डिस्कस करते हैं. देन वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ लॉसेस इन टर्म्स ऑफ इमीडिएट लॉस. वी हैव एन एंकरेज स्लिप. एंकरेज स्लिप बेसिकली किस तरह से अपीयर होता है, जब आपने प्री-स्ट्रेसिंग प्रोवाइड की तो आपकी ये जो डिवाइसेस हैं ये डिवाइसेस बेसिकली आपके एंकरेजेस कंसीडर होते हैं. तो इंकरेजेस बेसिकली होल्ड कर रहे हैं, प्रोवाइड एक जो है वो एक पकड़ है बेसिकली आपके प्री-स्ट्रेसिंग टेंडन्स को एक यूनिफॉर्म पोजीशन के ऊपर उन्होंने फिक्स किया हुआ है. अब इनके दरमियान से एक स्लिपेज भी अपीयर हो सकती है. सो इन मोस्ट केसेस पोस्ट टेंशन सिस्टम्स व्हेन द प्री-स्ट्रेस फोर्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द जैक टू द एंकरिंग एंड्स द वेजेस स्लिप ओवर अ स्मॉल डिस्टेंस. कि ये वेजेस हैं जो इनके दरमियान जो वेजेस लगे हुए उन वेजेस के अंदर से आपका जो एलिमेंट है बेसिकली प्री-स्ट्रेसिंग टेंडन जो है वो थोड़ा सा स्लिप हो जाता है. और लॉस ऑफ प्री-स्ट्रेस इज ड्यू टू द कॉन्सिक्वेंट रिडक्शन इन द लेंथ ऑफ द टेंडन. जो स्लिप हुई वो स्लिप बेसिकली आपका एक लॉस है, और जो रिडक्शन इन लेंथ अपीयर हुआ दैट रिडक्शन बेसिकली कंसीडर्ड एज अ लॉस ऑफ प्री-स्ट्रेसिंग टेंडन. अमाउंट ऑफ स्लिप डिपेंड्स ऑन द एंकरेज सिस्टम. जितना आपका मजबूत, जितना आपका अच्छा एक वैलिड एक प्रॉपर प्रोवाइडेड एंकरेज सिस्टम होगा उतनी ही स्लिपेज के चांसेस कम होता है. नाउ वी हैव एंकरेज सिस्टम हियर. फ्रेजिनेट सिस्टम जो कि 5 मिलीमीटर के स्ट्रैंड्स के बार्स के लिए यूज होता था या 8 मिलीमीटर के स्ट्रैंड्स के लिए यूज होता था, वो तकरीबन 4 to 6 मिलीमीटर एंकरेज डेवलप होती थी उसके अंदर एंकरेज स्लिप. उसके बाद जो मैग्नेट सिस्टम बनाया गया, मैग्नेट सिस्टम के अंदर जो स्लिप था वो ज्यादा हो गया, 8 मिलीमीटर तक जो है वो स्लिप प्रोड्यूस होना शुरू हो गई. उसके बाद जो है वो हमारे पास जो डेविडेक सिस्टम आया उसने सिग्निफिकेंटली एंकरेज स्लिप को लॉस को जो है वो रिड्यूस कर दिया. वो एक प्रॉपर नेटवर्क था, प्रॉपर एक सिस्टम था जिसकी वजह से टोटल जो स्लिपेज लॉसेस थे वो कम हो गए और जो नॉर्मली 1 मिलीमीटर तक स्लिपेज को अलो करता था. देन वी हैव अ फ्रिक्शन लॉसेस. अब फ्रिक्शन लॉसेस का नाम आप ऑलरेडी पढ़ा है, सुना है कि फ्रिक्शन बेसिकली इज बिटवीन 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स. एक रगड़ डेवलप होती है उसको हम फ्रिक्शन कंसीडर करते हैं. तो फ्रिक्शन बेसिकली जनरेटेड एट द इंटरफेस ऑफ कंक्रीट और स्टील के दरमियान एक फ्रिक्शन डेवलप होती है ड्यूरिंग द स्ट्रेचिंग ऑफ अ कर्व टेंडन इनटू द केस ऑफ पोस्ट टेंशन मेंबर. जब आप फ्रिक्शन लॉसेस की बात सुनते हैं तो फ्रिक्शन लॉसेस या एंकरेज लॉसेस जो हैं वो ज्यादातर अपीयर होते हैं. फ्रिक्शन जो है वो 100%, एंकरेज जो है वो समटाइम्स अपीयर होते हैं पोस्ट टेंशन एलिमेंट्स के अंदर ओनली. अब इस केस के अंदर क्या होता है कि हम कंक्रीट ऑलरेडी बना चुके हैं,
प्रीस्ट्रेसिंग हम बाद में प्रोवाइड करने लगे हैं, तो इस वजह से कंक्रीट के अंदर अगर आपका कर्व्ड पैराबोलिक फॉर्म के अंदर आपके टेंडन प्रोफाइल्स हैं, तो वहां पे जो है वो जब आप पुलिंग फोर्स अप्लाई करते हो तो प्रीस्ट्रेसिंग टेंडन जो है वो उस कंक्रीट के सरफेस के साथ एक फ्रिक्शन डेवलप करता है. द फ्रिक्शन इज द जैकिंग एंकरेज सिस्टम इज जनरली वेरी स्मॉल. कि जैकिंग एंकरेज सिस्टम के अंदर तो फ्रिक्शन बहुत कम होती है, लेकिन कंक्रीट एंड स्टील के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा होती है. Most serious friction losses occurs between the tendon and its surrounding material. Serious जो friction losses हैं वो आपके टेंडन और उसके सराउंडिंग में जो मटेरियल है उनके दरमियान जो डेवलप होती है फ्रिक्शन, that normally produce a frictional losses. Friction loss occurs only in the case of post-tension members. The loss due to friction does not occur in pre-tension members because there is no concrete during the stretching of the tendons. कि प्री टेंशनिंग के अंदर आप टेंशनिंग तो पहले ही प्रोवाइड कर चुके हो, वहां पर फ्रिक्शन आने के चांसेस ही नहीं है, सिंपल सी बात है. लेकिन यहाँ पे जो पोस्ट टेंशनिंग एलिमेंट्स है उसके अंदर कंक्रीट हम पहले बना चुके होते हैं, प्री स्ट्रेसिंग हम बाद में प्रोवाइड कर रहे हैं, उस केस के अंदर जो है वो हमारे पास 100% चांसेस होते हैं फ्रिक्शनल लॉसेस डेवलप होने के. फ्रिक्शन इज जनरेटेड ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ टेंडन, क्योंकि पैराबोलिक फॉर्म के अंदर आपका टेंडन प्रोवाइड है. जो हम हाफ टेंडन पढ़ के आए, ग्रैप टेंडन प्रोफाइल पढ़ा आपने, स्ट्रेट टेंडन के अंदर पॉसिबली बहुत कम होता है, वो लेंथ इफेक्ट आ सकती है फ्रिक्शन लॉसेस की, कर्वेचर इफेक्ट नहीं होता. लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास है कर्वेचर ऑफ टेंडन की वजह से एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स की वजह से आपके जो लॉसेस डेवलप होते हैं, दैट लॉसेस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ फ्रिक्शनल लॉसेस. देन लाइक हियर वी कैन सी हियर कि जैसे आप प्रीस्ट्रेसिंग टेंडन है आपका यहाँ से एक कर्व फॉर्म के अंदर आ रहा है. अगेन हियर वी हैव अ कर्व टेंडन, कर्व प्रोफाइल, अगेन वी हैव अ कर्व प्रोफाइल हियर. तो जब आप पुलिंग फोर्स अप्लाई करते हो तो ये टेंडन स्ट्रेट होने की कोशिश करता है. अब स्ट्रेट होने की कोशिश करने की वजह से यहाँ पे जो ये आपका जो डक्ट है बेसिकली ये कनेक्ट हो जाता है इस कंक्रीट के साथ, ये डक्ट आपका कनेक्ट हो जाता है इस कंक्रीट के साथ, और प्रीस्ट्रेसिंग टेंडन जो है वो इनके सराउंडिंग के अंदर एक फ्रिक्शनल लॉसेस डेवलप करता है. Friction losses basically is divided into two main categories. Number one, frictional loss due to the length effect, and then we have a curvature effect. Curvature is due to curves and length is due to the length effects. Now length effect, the profile of the cable basically is linear. In straight systems के अंदर, straight tendon profile system के अंदर हमारे जो linear direction के अंदर, straight direction के अंदर जब आप पुलिंग फोर्स अप्लाई कर रहे होते हो तो आपके वॉल के साथ, जो डक्ट की वॉल के साथ आपका टेंडन टच हो जाता है, वो एक डक्ट के सरफेस के साथ एक लॉसेस जनरेट करता है. उस लॉसेस को हम बेसिकली कंसीडर करते हैं द लेंथ इफेक्ट ड्यूरिंग द स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेटनिंग ऑफ द टेंडन. And curvature basically is directly connected with the parabolic curves. If the profile is curved, there will be a loss in stress due to the friction between the tendon and the duct or between the tendons themselves. तो यहाँ पे जो कर्वेचर है बेसिकली वो कर्व प्रोफाइल्स के लिए है, और लेंथ इफेक्ट जो है वो बेसिकली आपके लीनियर प्रोफाइल सिस्टम्स के लिए है. यहाँ से आपको मजीद क्लियर हो जाएगा. लेट सपोज वी हैव अ डक्ट हियर और उसके अंदर से जो है वो हमारा एक प्रीस्ट्रेसिंग स्ट्रैंड गुजर रहा है, हम एक पुलिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये डेड एंड है, ये आपका लाइव एंड है, जैकिंग स्ट्रेसेस यहाँ से अप्लाई हो रही है. इन रियलिटी हमारा जो इमेज होता है वो बेसिकली हम कंसीडर क्या करते हैं, आइडियलाइज लोकेशन क्या होती है कि ये डक्ट या जो आपका डक्ट का जो सेंट्रॉइड है उसके अंदर से टेंडन पास हो रहा है. लेकिन इन रियलिटी जो आपका ये जो स्ट्रैंड है बेसिकली इसकी वॉल के साथ टच हो जाता है. सो इसकी वजह से जो डेवलप होती है वो बेसिकली आपके कर्वेचर इफेक्ट डेवलप होता है. और लेंथ इफेक्ट इसके साइड में जो वॉल जो डक्ट के साथ आपका स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली रगड़ खा रहा है, वो एक पूरा जिस लेंथ के अंदर वो रगड़ खा रहा है वो आपका लेंथ इफेक्ट कहलाता है. और जो आपका एक साइड के ऊपर जब टेंडन हो जाता है कर्व प्रोफाइल टेंडन्स के अंदर, उस केस के अंदर एक कर्वेचर डेवलप होता है या कर्वेचर इफेक्ट्स डेवलप होते हैं, जिनकी वजह से जो है वो कर्वेचर इफेक्ट फ्रिक्शनल लॉसेस डेवलप होती है. नाउ व्हाट आर द मेथड्स अवेल टू रिड्यूस द फ्रिक्शनल लॉसेस, कि हम फ्रिक्शनल लॉसेस को किस तरह से कम कर सकते हैं. वी हैव सम मेथड्स हियर. केबल शुड पास थ्रू द मेटालिक ट्यूब्स. कि मेटालिक ट्यूब्स जो है वो नॉर्मली आप यूज करो जब आपके जो है वो केबल्स या टेंडन्स आप यूज कर रहे हो उनके दरमियान के लिए, डक्ट्स के लिए, ताकि जो सिमिलर मटेरियल्स है तो कम से कम फ्रिक्शन जो है कम जनरेट हो. जो डिफरेंट मटेरियल्स के दरमियान फ्रिक्शन जो है वो पॉसिबली हायर भी हो सकती है. सो इस वजह से जो हमारे पास सजेस्टेड एक्सप्रेशन है वो ये है कि केबल शुड पास थ्रू अ मेटालिक ट्यूब्स. And then we have a bands. The band should be through as small as an angle as possible. And second point is the band should be through as small an angle
एज पॉसिबल कि कर्वेचर जो आपने डेवलप किया उसके दरमियान जो आपने बैंड प्रोवाइड किया, जो कर्व बनाया, उसकी एंगल जो है वो नॉर्मल रखनी है, वो एंगल जो है वो स्मॉलर होनी चाहिए। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द बैंड शुड बी लार्ज। कर्व का जो रेडियस है बेसिकली वो आपका लार्जर रेडियस होना चाहिए, ताकि एक शार्प जो एंगल है बेसिकली शार्प एंगल हमेशा जो है एक वो हायर इफेक्ट अप्लाई करता है उसके सरफेस के ऊपर, वॉल के ऊपर। एक फॉरन क्विक जो है वो आपने कर्व प्रोवाइड किया टेंडन के अंदर, तो सडनली स्ट्रेसेस जो है वो एज अ सिंगल पॉइंट लोड वहां पर सरफेस के ऊपर एक्ट कर जाएंगी, जिसकी वजह से मेंबर जो है वो वहां पे क्रैक हो सकता है। देन द प्रीस्ट्रेसिंग द वायर फ्रॉम बोथ एंड्स। अगर आप वायर को दोनों एंड से प्रीस्ट्रेस करते हैं, दोनों एंड से टेंशन जनरेट कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर भी आपके लॉसेस के चांसेस जो है फ्रिक्शनल लॉसेस के बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं, वो ये कोशिश की गई थी, पहले बहुत सारे मेथड्स अप्लाई किए गए कि दोनों एंड से अगर हम प्रीस्ट्रेसिंग या प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स अप्लाई करें तो हम लॉसेस को कम कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आपके स्लिपेज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दोनों एंड्स के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आपकी जो ग्रिप्स है, एंकरेज सिस्टम है, प्रॉपर वेजिंग सिस्टम है, वो आपके फेल हो जाते हैं। कोई एक सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाता है, या वहां पे अदर जो है वो इफेक्ट्स बहुत ज्यादा जनरेट हो जाती हैं। एंड देन वी हैव ओवर टेंशन इन द वायर्स। फ्रिक्शन लॉसेस से बचने के लिए आप वायर वही जो हम पिछले मेथड्स के अंदर डिस्कस कराए कि आप थोड़ी सी स्ट्रेसिंग ज्यादा प्रोवाइड कर दो तो फ्रिक्शन लॉसेस थोड़ी बहुत हो भी जाएगी, तो हमारा जो काउंटर बैलेंस हो जाएगा, जो हमें रिक्वायर्ड फुल्ली सर्विस लोडिंग के लिए जो लॉसेस अवेलेबल हैं, जो प्री स्ट्रेसिंग अवेलेबल है, वो हमें अचीव हो जाएगा कम से कम। So the loss of pre-stress basically is equals to initial stress minus effective stress. जो इनिशियल जैकिंग प्री-स्ट्रेसिंग आपने अप्लाई की और जो यूजफुल स्ट्रेस जो कि आपके परफॉर्म कर रही है, फंक्शन अटेंड कर रही है, इन दोनों वैल्यूज के दरमियान जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस बेसिकली इज नोन एज द लॉस ऑफ प्री-स्ट्रेस. So initial pre-stress basically is the deducting the loss due to anchorage, take-up and friction. Initial pre-stress is obtained. If pre-stress is measured at the time of pulling the wire, the stress is termed as a jacking stress. If jacking stress is treated as an initial stress, the effective stress is the jacketing stress minus all losses. कोई simple initial stress and effective stress दोनों के दरमियान जो difference आ रहा है, that difference basically is known as a loss. And effective stress is equals to initial stress, initial pre-stress minus losses. तो ये आपके पास जनरल एक्सप्रेशंस हैं जिनको हम यूज करके एक आइडेंटिफाई करते हैं या कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ओवरऑल जो लॉसेस हैं वो कितने लॉसेस डेवलप हो रही हैं, कितने लॉसेस जनरेट हो रहे हैं. So the total amount of losses according to the tensioning system, total amount of losses according to the tensioning system basically are in case of pre-tensioned elements. कौन कौन से लॉसेस अपीयर हो सकते हैं? लॉसेस ड्यू टू क्रीप, लॉसेस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग, एंड देन वी हैव लॉसेस ड्यू टू श्रिंकेज एंड स्टील रिलैक्सेशन. कि प्री टेंशनिंग के केस के अंदर हमारे पास जो लॉसेस हैं ये चार लॉसेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं. क्रीप लॉस है, इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस है, स्टील रिलैक्सेशन है एंड श्रिंकेज लॉस है. लेकिन इन टर्म्स ऑफ पोस्ट टेंशन एलिमेंट्स वी हैव सम अदर लॉसेस आल्सो. लॉस ड्यू टू क्रीप कांस्टेंट हो गया, सिमिलर इलास्टिक शॉर्टनिंग, shrinkage, steel relaxation, and then we have two other additional losses जो कि post tension elements के अंदर appear होते हैं, that are anchorage slip losses and friction losses. तो ये हमारे पास जो है वो elements appear होते हैं. किस तरह से losses हमारे generate होते हैं members के अंदर, ये total overall losses होते हैं. Now comparison between RCC and pre-stress concrete elements. In terms of load carrying capacity, of course pre-stress concrete has a higher load carrying capacity, whereas the reinforced concrete has a lower load carrying capacity. Deflection is very less in pre-stress members and very higher deflections observed in the reinforced concrete elements. Economical than RCC, very expensive. Shock resistance, pre-stress is better and reinforced concrete have a lower shock resistance. And then for long span it's applicable, however reinforced concrete is not applicable. Self weight much lesser than the RCC elements, these are the higher than the pre-stress elements. तो ये हमारे पास जनरल एडवांटेजेस हैं कि इन टर्म्स ऑफ प्री-स्ट्रेस कंक्रीट आप लॉसेस हैं, थोड़े बहुत लॉसेस अपीयर हो सकते हैं, फ्लॉज हैं इस मेथड के अंदर, लेकिन उनको हम काउंटर बैलेंस कर सकते हैं. और ये मेथड सेंसिटिव मेथड है, इसके अंदर हायर एक टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, लेकिन इसके जो एडवांटेजेस है कंपेयर टू आरसीसी एलिमेंट्स वो बहुत ज़्यादा बेहतर एडवांटेजेस हैं, जिसको वजह से ये एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं पॉजिटिवली.
So now we have a pre-tension losses in pre-stress elements कि प्री टेंशन लॉसेस हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इस एग्जांपल को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं वन बाय वन तमाम लॉसेस को। उसके बाद सेकंड एग्जांपल जो है वो पोस्ट टेंशन है, पोस्ट टेंशन एलिमेंट का है। सो फॉर द लॉसेस इन प्री टेंशन एलिमेंट्स वी हैव अ डिजाइन एग्जांपल हियर, अ 36 फीट स्पैन प्री टेंशन सिंपली सपोर्टेड बीम हैज अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ जो विड्थ है बेसिकली वो 18 इंचेस है और ओवरऑल डेप्थ जो है वो 32 इंचेस है। कैलकुलेट द इलास्टिक लॉसेस एंड ऑल द टाइम डिपेंडेंट लॉसेस। इलास्टिक लॉसेस कौन से हैं, इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉसेस क्या हैं, उनको हमने कैलकुलेट करना है और तमाम टाइम डिपेंडेंट लॉसेस को कैलकुलेट करना है। गिवन कंडीशंस बेसिकली आर प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स एट ट्रांसफर, इनिशियल प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स इज इक्वल्स टू 435 के, area of pre-stressing steel basically is equals to area of pre-stressing bar is 3 inch square. Concrete compressive strength is 5 KSI. Modulus of elasticity of concrete basically is 5000 KSI. Modulus of elasticity of pre-stressing steel is 29,000 KSI. However, the profile of tendon is parabolic. Eccentricity at midspan is 6 inches and the eccentricity at ends is equals to 0. इसका आप कंप्लीट एक डायग्राम बनाना चाहें बना सकते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके अंदर सेंट्रोइडल एक्सिस से जो इसेंट्रिसिटी है वो हमारे पास जो है 6 इंचेस की है। इनिशियल प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स 435 के का अप्लाई हो रहा है। तो एरिया ऑफ प्री-स्ट्रेसिंग बार जो है वो 3 इंच स्क्वायर है। कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी गिवन है। जो प्री-स्ट्रेसिंग स्टील है उसकी हमारे पास मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी है। उसके बाद टेंडन जो है वो पैराबोलिक टेंडन है। इसेंट्रिसिटी एट मिड भी गिवन है, इसेंट्रिसिटी एट एंड्स जो है वो हमारे पास 0 है। सो अब कैलकुलेट करते हैं कि लॉसेस कौन कौन से या किस तरह से अपीयर होते हैं। फर्स्ट स्टेप बेसिकली इज इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस। अब इलास्टिक शॉर्टनिंग को कैलकुलेट करने के लिए लेट्स सपोज हम फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेसेस ड्यू टू प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स एट ट्रांसफर। इलास्टिक शॉर्टनिंग बाद की बात है, पहले हम चेक करते हैं कि प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स जो है वो कितनी स्ट्रेस जनरेट कर रहा है। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस ड्यू टू प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स इज इक्वल्स टू इनिशियल प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ प्री-स्ट्रेसिंग टेंडन। Initial pre-stressing force 435 divided by area of pre-stressing bar we have a 3 inch square and we got initial pre-stressing stress basically is 145 KSI। जो प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स 435 के का जो अप्लाई हो रहा है किलो पाउंड्स का, उसने जो स्ट्रेस डेवलप की वो 145 KSI की डेवलप की। सो नाउ स्ट्रेन इन प्री-स्ट्रेसिंग स्टील, stress is directly proportional to strain, so strain is equals to stress divided by modulus of elasticity of steel. Stress we have 145 divided by modulus of elasticity of pre-stressing steel we have 29,000, so strain we got 0.005 microstrain. And we have a modular ratio. Modular ratio basically is the modulus of elasticity of steel divided by modulus of elasticity of concrete. So modular ratio here we got modulus of elasticity of pre-stressing steel we have 29,000, modulus of elasticity of concrete we have 5,000, so we got value of 5.8 as a modular ratio। और उसको हमने लंप सम राउंड अबाउट करके 6 की वैल्यू मॉड्यूलर रेशियो की चूज की। मॉड्यूलर रेशियो हमारे पास 6 आ गया। नाउ स्ट्रेस लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग। इलास्टिक शॉर्टनिंग के लिए या इलास्टिक शॉर्टनिंग डेवलप कराने के लिए जो स्ट्रेसेस अप्लाई हो रही हैं, दैट स्ट्रेस बेसिकली इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अगेन फोर्स पर यूनिट एरिया। सो हियर वी हैव अ मॉड्यूलर रेशियो। तो इलास्टिक शॉर्टनिंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू n modular ratio, initial pre-stressing force divided by area of the section. So 6 we have a modular ratio, initial pre-stressing force and area of section जो है वो हमारे पास 18 by 32 इंच का टोटल सेक्शन था। तो pre-stressing का जो इफेक्ट, जो स्ट्रेस आपकी इलास्टिक शॉर्टनिंग के लिए जो अप्लाई हो रही है, दैट स्ट्रेस बेसिकली इज 4.5 KSI। अब आते हैं स्ट्रेन के ऊपर। अब स्ट्रेन के अंदर हमारे पास क्या है कि दो कंडीशंस हैं। नंबर 1 हमारे पास इसेंट्रिसिटी डिफरेंट है, एंड्स के ऊपर एक इसेंट्रिसिटी है और दूसरी जो है वो सेंट्रॉइड सेक्शन के अंदर दूसरी इसेंट्रिसिटी है। हम एक कॉमन वैल्यू, एवरेज वैल्यू चूज करते हैं हमेशा कि पैराबोलिक फॉर्म के अंदर टेंडन है और एवरेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस केस के अंदर स्ट्रेन एट एंड ऑफ द सेक्शन वी हैव कि एंड ऑफ द सेक्शन के ऊपर इसेंट्रिसिटी 0 है। सो इनिशियल प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सेक्शन जस्ट डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। कि स्ट्रेन आ गई ना आपकी, स्ट्रेन इज इक्वल्स टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेस की वैल्यू फोर्स ओवर एरिया आ गया और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आपकी कॉमन आ गई। तो स्ट्रेन एट एंड जहां पे इसेंट्रिसिटी 0 थी वहां पे स्ट्रेन की वैल्यू आ गई 0.151 माइक्रोस्ट्रेन।
और इंटू 10⁻⁻3। अब स्ट्रेन एट मिड स्पैन, क्योंकि वहां पे मिड के अंदर आपके पास इसेंट्रिक डिस्टेंस आ जाता है, उस केस के अंदर आपकी स्ट्रेन एट मिड स्पैन इज इक्वल्स टू इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑफ कंक्रीट इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्लस इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स इनटू इसेंट्रिसिटी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ये तमाम फार्मूले हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं पिछली क्लासेस के अंदर, बड़ी जनरल एक्सप्रेशन है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। मॉडुलस ऑफ जो है अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली इज इक्वल्स टू BD³/12। आप सेक्शनल मॉडुलस जो है वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। स्ट्रेन एट द एंड ऑफ सेक्शन, तमाम वैल्यूज हमने पुट कर दी। इस सेक्शन कंप्लीट की जो इक्वेशन का जो वैल्यूज या जो कैलकुलेशंस है वो ऑलरेडी हम यहाँ पे कराए हैं, सारी वैल्यूज हमने पुट की। जो है वो हमारे पास इसेंट्रिसिटी 6 इंच स्क्वायर है, कंक्रीट की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी है, तमाम वैल्यूज जो है वो स्ट्रेन एट एंड ऑफ द सेक्शन पहले वैल्यू आ गई, स्ट्रेन एट द मिड ऑफ द सेक्शन हमारे पास ये वैल्यू आ गई। सो वी गॉट एवरेज स्ट्रेन इज इक्वल्स टू दोनों वैल्यूज का हमने मिड स्ट्रेन और जो एंड स्ट्रेन थी दोनों वैल्यूज का हमने एवरेज ले लिया। 0.183 इंटू 10⁻⁻3 जो है एवरेज स्ट्रेन आ गई। नाउ प्रीस्ट्रेसिंग लॉस इज इक्वल्स टू स्ट्रेन इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेन हमारे पास 0.183 आ गई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास 29,000, जो कि प्रीस्ट्रेसिंग स्टील टेंडन की जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। टोटल प्रीस्ट्रेसिंग लॉस वी गॉट 5.3 KSI, जो कि इलास्टिक शॉर्टनिंग की वजह से लॉस डेवलप हुआ। सो नाउ परसेंटेज लॉस इज इक्वल्स टू इलास्टिक शॉर्टनिंग का जो लॉस आया वो 5.3 है, डिवाइड बाय टोटल इनिशियल प्रीस्ट्रेस जो है वो हमारे पास वैल्यू कितनी थी इनिशियल स्ट्रेसेस की, वो 145 थी। इनको हमने दोनों का जो है रेशो निकाल दिया। टोटल जो परसेंटेज लॉस आया इलास्टिक शॉर्टनिंग के लिए वो 3.66% जो है वो इलास्टिक शॉर्टनिंग का लॉस डेवलप हुआ। सो सेकंड वी हैव अ लॉस ड्यू टू श्रिंकेज इन प्री टेंशन एलिमेंट। हम ऑलरेडी डिस्कस कर आए कि श्रिंकेज स्ट्रेन इन कंक्रीट इन टर्म्स ऑफ प्री टेंशनिंग हमारे पास जो वैल्यू है श्रिंकेज इन कंक्रीट की वो 0.0003 माइक्रोस्ट्रेन। अब स्ट्रेन की वैल्यू है, इसको हमने जस्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से मल्टीप्लाई करना, हमारे पास स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी। सो श्रिंकेज स्ट्रेन 0.0003 माइक्रोस्ट्रेन, श्रिंकेज स्ट्रेस इज इक्वल्स टू श्रिंकेज स्ट्रेन इनटू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। हमने मल्टीप्लाई किया, टोटल श्रिंकेज स्ट्रेस आ गई 8.7 KSI। नाउ श्रिंकेज परसेंटेज लॉस इज इक्वल्स टू ए स्ट्रेस डिवाइड बाय टोटल स्ट्रेस जो हमारे पास प्रीस्ट्रेसिंग स्ट्रेस डेवलप हुआ 145 था, जो इनिशियल प्रीस्ट्रेस श्रिंकेज की वजह से आया वो 8.7, दोनों का रेशियो जो है अराउंड 6%। तो आपके पास जो लॉस जनरेट हुआ इलास्टिक शॉर्टनिंग की वजह से वो 3.66 था, और प्रीस्ट्रेसिंग जो श्रिंकेज की वजह से जो अपीयर हुआ 6% लॉस है। देन वी हैव अ लॉस ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट। अब क्रीप ऑफ कंक्रीट के लिए हम अज्यूम करते हैं कि क्रीप कोफिशिएंट बेसिकली जो वैल्यू है वो 2 है, क्योंकि नॉर्मल रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम नॉर्मल कंसीडर कर रहे हैं, और कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो हम 5000 या जो भी हमें कंक्रीट की स्ट्रेंथ गिवन है उसको हम कंसीडर कर रहे हैं, और हमारे पास जो क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू है वो हम अज्यूम कर रहे हैं इक्वल्स टू 2। सो स्ट्रेस बेसिकली या लॉस जो ड्यू टू क्रीप है इज इक्वल्स टू क्रीप कोफिशिएंट इनटू क्रीप स्ट्रेन इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्रीप स्ट्रेन और इलास्टिक स्ट्रेन, इलास्टिक स्ट्रेन और क्रीप स्ट्रेन इज इक्वल्स टू इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑफ सेक्शन इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हमारे पास स्ट्रेन की जो वैल्यू आ गई इलास्टिक स्ट्रेन की, इसको हम वैल्यू को सिंपलीफाई कर रहे हैं। जस्ट आपने क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू 2 रखी, इलास्टिक स्ट्रेन की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आ गई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपके पास ऑलरेडी वैल्यू है। अब तमाम वैल्यूज को आपने पुट किया, आपके पास जो है वो प्रीस्ट्रेसिंग के अंदर क्रीप की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप हुआ वो 8.8 KSI का है। So now percentage loss is equals to 8.8 जो आपका creep loss डिवाइड बाय टोटल प्रीस्ट्रेसिंग स्ट्रेस। आपके पास टोटल जो श्रिंकेज के क्रीप की वजह से जो लॉस अपीयर हुआ वो 6.1% है। So now loss due to relaxation of steel, as discussed in our last class, generally the relaxation of the steel varies between 1 to 5%, और उसके अंदर हम एक एवरेज वैल्यू लो रिलैक्सेशन स्ट्रेंथ के लिए कंसीडर कर रहे हैं 2.5%। सो स्ट्रेस ड्यू टू द लॉसेस ड्यू टू द रिलैक्सेशन ऑफ स्टील इज इक्वल्स टू 2.5%, यानी 0.025 इंटू फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टोटल जो है वो प्रीस्ट्रेसिंग स्ट्रेस। हमारे पास जो स्ट्रेस आ गई वो 3.6 KSI आ गई। Other losses due to bending, friction of cable spacers and end block of pre-tensioning systems are around 2% हम assume कर रहे हैं, ये 2% से भी कम होते हैं नॉर्मली।
तो 2% की वजह से अदर लॉसेस जो है वो हमारे पास 2.9 KSI आ गई। सो एंड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन टेंडन इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो प्री टेंशन एलिमेंट्स के अंदर नहीं होती, पोस्ट टेंशन मेंबर्स के अंदर फ्रिक्शन होती है। तो फ्रिक्शन की वजह से जो वैल्यू है वो 0 आ गए। So now we have a cumulative sum here, elastic shortening loss, total stress जो elastic shortening की वजह से है वो 5.3 KSI और losses जो है वो 3.6%, shrinkage in concrete loss 8.7 KSI 6%, creep of concrete loss 8.8 KSI 6.1%, relaxation of steel 3.6 KSI 2.5%, other losses 2.9 KSI or 2%, and total losses is equals to 29.3 KSI total losses हैं स्ट्रेसेस के अंदर, और 20.2% जो है वो टोटल प्री स्ट्रेसिंग लॉसेस हैं इन परसेंटेजेस। सो नाउ इफेक्टिव प्री स्ट्रेस इज इक्वल्स टू जो टोटल प्री स्ट्रेस अप्लाई हुआ, इनिशियल प्री स्ट्रेस वो 145 जो KSI का था, उसमें से हमने 29.3 जो लॉसेस स्ट्रेसेस हैं वो हमने माइनस कर लिए। टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस हमारे पास 115.7 KSI की वैल्यू आ गई। So effective pre-stressing force is equals to pre-stressing force effective stress multiplied by area of pre-stressing bar। आपके पास effective जो pre-stressing force की वैल्यू आ गई वो 347.1 KSI की वैल्यू आ गई। तो ये था हमारा कंप्लीट डिजाइन एग्जांपल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लॉसेस कंसीडर्ड इन द प्री टेंशन एलिमेंट इन प्री टेंशन मेंबर, जिसके अंदर आप पैराबोलिक फॉर्म के अंदर एक कर्व के टेंडन को स्ट्रेस कर रहे थे और तमाम लॉसेस जो है हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। सो नाउ वी हैव एन एग्जांपल फॉर पोस्ट टेंशन लॉसेस इन द प्री स्ट्रेस मेंबर्स। अब प्री टेंशन के बाद पोस्ट टेंशन के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर एग्जांपल है। यू आल्सो हैव टू सॉल्व द सेम एग्जांपल फॉर योर असाइनमेंट आल्सो। थोड़ी सी उसके अंदर मॉडिफिकेशंस हैं। मैं रफली आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। इस एग्जांपल को अच्छे तरीके से आपने खुद कवर कर लेना है। तमाम एग्जांपल जो प्रीवियस था हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, सिमिलर एग्जांपल है, कोई खास इसमें फर्क नहीं है। कैलकुलेट ऑल द लॉसेज of a 120 foot span post tensioned beam that has an I section with the following details। एक आई गर्डर है आपके पास, पोस्ट टेंशन आई गर्डर है, 120 फीट उसका स्पैन है और उसके अंदर ऑल लॉसेस कैलकुलेट करने हैं। ऑल लॉसेस इन टर्म्स ऑफ पोस्ट टेंशन एलिमेंट हमारे पास इलास्टिक शॉर्टनिंग आ गया, क्रीप ऑफ कंक्रीट आ गया, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट आ गया, स्टील रिलैक्सेशन आ गया, एंकरेज स्लिप आ गया, फ्रिक्शनल लॉसेस आ गई। तो ये तमाम लॉसेस जो है वो आपने एस्टिमेट करने हैं। However, the details of the section basically are area of concrete section. We have a 760 inch square. Moment of inertia we have 1.64 into 10 raised power 5 inch power 4. Pre-stressing force at transfer is initial pre-stressing force is 1110 जो है वो हमारे पास K है। Area of pre-stressing steel we have 7.5 inch square. Concrete compressive strength we have 5 KSI. Modes of elasticity of concrete 5000 KSI. Modes of elasticity of pre-stressing steel 29,000 KSI. Profile of tendon basically is parabolic. However, the eccentricity at mid span is 20 inches and eccentricity at ends is equals to 0. तो ये हमारे पास एक जनरल जो है वो कंप्लीट एक स्टेटमेंट थी डिजाइन एग्जांपल की। ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोसीजर है, सिमिलर ऑलमोस्ट इक्वेशंस हैं जो हम लास्ट एग्जांपल के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूँ, डिटेल के अंदर आप इसको पढ़िएगा, इंशाल्लाह फिर आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। So loss due to elastic shortening as we have already discussed in our previous example। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्री स्ट्रेसिंग फोर्स कैलकुलेट किया। प्री स्ट्रेसिंग की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप हुई, स्ट्रेस इज इक्वल टू इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग फोर्स डिवाइड बाय एरिया। देन वी हैव अ स्ट्रेस इन कंक्रीट सेक्शन एट एंड सेक्शन। टोटल स्ट्रेसेस कितनी जनरेट हुई, इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग फोर्स डिवाइड बाय जो आपका ओवरऑल एरिया ऑफ द सेक्शन है। कंक्रीट के एंड के ऊपर स्ट्रेसेस कितनी डेवलप हो रही हैं जो हम इलास्टिक शॉर्टनिंग के लिए कैलकुलेट करते हैं। ये आपके पास जो इलास्टिक शॉर्टनिंग के लिए स्ट्रेसेस आ गई। नाउ स्ट्रेस इन कंक्रीट एट मिड स्पैन, क्योंकि आपके पास यहाँ पे इसेंट्रिसिटी आ गई। इसेंट्रिसिटी आने के बाद दूसरी जो चीज़ है यहाँ पे आपके पास जो है वो डेड लोड मूवमेंट आ गया, क्योंकि स्टेटमेंट्स के अंदर फर्क है। यहाँ पे ऑल लॉसेस की बात हो रही है, तमाम चीज़ें आपके मेंबर के अंदर आ गई, तो यहाँ पे हम डेड वेट ऑफ द एलिमेंट भी कंसीडर कर रहे हैं। प्रीवियस केस के अंदर आपको हाईलाइट करा दिया गया था कि यू हैव टू ओनली फोकस ऑन द इलास्टिक शॉर्टनिंग, श्रिंकेज एंड क्रीप के जो टाइम डिपेंडेंट लॉसेस हैं उनके ऊपर। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैलकुलेट ऑल द लॉसेस इन केस ऑफ पोस्ट टेंशन। तो उस केस के अंदर आपकी जैसे स्टेटमेंट यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हो जाती है, स्ट्रेस इन कंक्रीट एट मिड स्पैन, क्योंकि आपके यहाँ पे डेड लोड मेंबर का भी आ जाता है। तो फॉर्मूला वही है, इनिशियल स्ट्रेसेस या फोर्सेस डिवाइड बाय एरिया ऑफ द सेक्शन प्लस इनिशियल फोर्स डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ई यानी इसेंट्रिसिटी माइनस डेड लोड मोमेंट इनटू ई डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
तमाम वैल्यूज आप डेड वेट किस तरह से निकालते हैं, ओवरऑल सेक्शन एरिया डिवाइड बाय जो है वो कन्वर्जन इंच स्क्वायर का फीट स्क्वायर में, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, उसके बाद डेड लोड मूवमेंट WL स्क्वायर बाय 8 हमने फॉर्मूला यूज किया, तमाम वैल्यूज को हमने इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया, टोटल स्ट्रेस हमारे पास जो है वो वैल्यू आ गई, स्ट्रेस मिड स्पैन इज इक्वल टू 2.09 KSI। सो एवरेज स्ट्रेस, हमने एवरेज स्ट्रेसेस निकाली, एवरेज स्ट्रेस निकालने के बाद एवरेज स्ट्रेन निकाली, एवरेज स्ट्रेन आ गई, उसके बाद इलास्टिक लॉस इज इक्वल टू आपका इलास्टिक स्ट्रेन इनटू मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी, टोटल एवरेज लॉस आ गया आपका 10.3 KSI। सो अब जो प्रीवियस एग्जांपल था, प्रीवियस एग्जांपल के अंदर हम इलास्टिक शॉर्टनिंग को जब कैलकुलेट कर रहे थे उसके अंदर ये था कि हम डिफरेंट लॉसेस को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, टेंडन को डिफरेंट पेयर्स के अंदर कंसीडर कर रहे थे कि अगर आपके फॉर एग्जांपल टोटल 10 टेंडन्स हैं और हम 5 पेयर्स के अंदर उसको कंसीडर कर रहे हैं तो इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस जो है वो लास्ट टेंडन के अंदर नहीं होता, यानी फर्स्ट 4 पेयर्स के अंदर कंसीडर होता है। और सेकंडली अगर आपके तमाम टेंडन्स एट अ टाइम आप पुल कर रहे हो तो आपका जो इलास्टिक शॉर्टनिंग जो लॉस है वो अपीयर नहीं होता, वो 0 हो जाता है। तो ये हम ऑलरेडी लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस करा है। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूम दैट द टेंडन्स आर टेंशन एंड attention 2 at a time, the first pair will have the greatest loss, however the last pair will have 0 loss. So here we have हमने जो टेंडन की जो स्ट्रेसेस डेवलप हुई, जो टोटल स्ट्रेसेस डेवलप हुई उसको हमने हाफ कंसीडर कर लिया, एवरेज वैल्यू 5.15 KSI। सो परसेंटेज लॉस बेसिकली टू इलास्टिक शॉर्टनिंग इज इक्वल टू 5.15 डिवाइड बाय 148। टोटल इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग जो टोटल इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग आ गया स्ट्रेस, हमने टोटल परसेंटेज लॉस निकाला जो कि 3.5% आ गया। उसके बाद श्रिंकेज पोस्ट टेंशन के अंदर 0.0002 हमने तमाम वैल्यूज को पुट किया, परसेंटेज लॉस वी गॉट 3.9%। देन वी हैव अ क्रीप लॉस, क्रीप अगेन क्रीप कोफिशिएंट वी गॉट हियर 1.5 क्योंकि कंक्रीट की वैल्यूज चेंज हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं क्रीप कोफिशिएंट इज 1.5, तमाम वैल्यूज हमने पुट की, वी गॉट क्रीप परसेंटेज लॉस एज 8.6%। क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हम लास्ट क्लास उसमें जो प्रीवियस स्टेप्स थे प्रीवियस डिजाइन के अंदर ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे जस्ट रिपीटेशन है, जहाँ पे कोई नई चीज आ रही है मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिटेल के अंदर। देन वी हैव अ लॉस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्टील, रिलैक्सेशन के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं वही, क्योंकि डिजाइन एग्जांपल हम लास्ट क्लास के अंदर रिलैक्सेशन स्टील का सेपरेट एज ए स्पेसिफिक हम ऑलरेडी कैलकुलेट कराए हैं। अगर वो स्पेसिफिकेशंस आपके पास ऑलरेडी डिजाइन एग्जांपल के अंदर गिवन है तो वही आप फार्मूलाज और कंडीशन यूज करके निकाल सकते हैं। लेकिन कोड क्या कहते हैं, स्टील रिलैक्सेशन नॉर्मली वी हैव फ्रॉम 1 to 5%, और एवरेज वैल्यू जो हम चूज करते हैं फॉर लो रिलैक्सेशन स्टील्स के लिए वो 2.5% की वैल्यू है। तो ज्यादा डिटेल के अंदर एक्सप्रेशंस के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट वी आर कंसीडरिंग 2.5% एज ए स्टील रिलैक्सेशन लॉसेस। तो हमारे पास जो स्टील की वजह से स्ट्रेसेस डेवलप हुए वो 3.7 KSI थे। स्लिप एंड एंकरेज we got here for tensioning from one end only, assuming a slippage of 0.15 inches। जो टेबल के अंदर सजेस्टेड वैल्यूज भी थी, और यहाँ पे हम द लेंथ ऑफ केबल इज इक्वल्स टू 120 जो आपके पास बीम की लेंथ है मल्टीप्लाई बाय 12 यानी कि इंच के अंदर कन्वर्जन, टोटल वी गॉट 1440 इंचेस। सो स्ट्रेस ड्यू टू स्लिपेज इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो हमारे पास चेंज इन लेंथ आया, स्लिपेज कितना 0.15 इंचेस, टोटल लेंथ 1450 थी और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से हमने मल्टीप्लाई किया तो स्लिपेज लॉस जो है वो हमारे पास 3 KSI का अपीयर हो गया स्लिपेज स्ट्रेसेस। टू अलो फॉर एंकरेज स्लिप सेट द टेंशन फोर्स, कम से कम जो टेंशन फोर्स है एंकरेज स्लिप की वजह से, क्योंकि आप उसके अंदर क्या करते हो 3 KSI आप ऐड कर दो ताकि 3 KSI जो है वो एडिशनल फोर्स था, स्लिपेज थोड़ा सा अपीयर भी हो गया तो हमारी जो रिक्वायर्ड स्ट्रेसेस हैं वो हमारी बरकरार रहे। तो हमने यहाँ पे 100 टू अलो द एंकरेज स्लिप सेट द टेंशन फोर्स एज इक्वल्स टू 148 पहले वैल्यू थी, उसके अंदर हमने 3 KSI जो स्लिपेज की वैल्यू ऐड कर दी ऑन द प्रेशर गेज टू लीव अ नेट स्ट्रेस ऑफ 148 KSI इनटू द टेंडन्स आफ्टर स्लिपेज। तो इक्वेशन पैराबोलिक के अंदर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन के अंदर इक्वेशन भी हमारे पास अवेलेबल हैं, तमाम इक्वेशंस के अंदर हमने वैल्यू 4E/L जो डेरिवेटिव कंसीडर करके हमने वैल्यूज पुट की, 4 इंटू जो है वो हमारे पास सेंट्रिक डिस्टेंस है डिवाइड बाय L, तमाम वैल्यूज अपने पुट की 0.06 वैल्यू आ गई। इसको मजीद हमने सॉल्व किया, ओवरऑल परसेंटेज लॉस ड्यू टू श्रिंकेज ड्यू टू फ्रिक्शन बेसिकली इज इक्वल्स टू 13 KSI डिवाइड बाय 148 इनिशियल प्रेस्ट्रेसिंग फोर्स, वी गॉट लॉस ऑफ अबाउट 8.8%। तो ये एक्सप्रेशन इक्वेशन किस तरह से यूज की गई हैं, अगला आपका जो असाइनमेंट का क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली इसी रिलेटेड डिजाइन से है, इनको आपने खुद
सॉल्व करना है, अगर मैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आपके लिए छोड़ूंगा नहीं तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ नहीं पाओगे। तो थोड़ी सी जो है वो इजी, बिल्कुल इजी एग्जांपल्स हैं, इजी इक्वेशंस हैं, इनको आपने यूज करना और खुद उसको सॉल्व करना है। So now we have a total losses here, elastic losses, जिस तरह हमने लास्ट एग्जांपल के अंदर डिस्कस किया, elastic shortening loss we have values, shrinkage loss, and here we have a cumulative losses, friction loss, उसके बाद relaxation loss, creep loss, total losses we have 40.4 KSI, and total percentage loss we have a 27.3%. So effective pre-stress is equals to initial pre-stress minus इफेक्टिव प्री-स्ट्रेस, जो टोटल बच गया आपके पास, जो लॉसेस थे वो आपने डिडक्ट कर दिए, टोटल आपके पास जो इफेक्टिव प्री-स्ट्रेस आ गई वो 112.8 KSI की वैल्यू बच गई। प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स अगेन निकालने के लिए आपने इस वैल्यूज को जो है वो ओवरऑल जो आपके मेंबर के अंदर जो स्ट्रेसेस होती हैं उसको हम स्ट्रेंड्स और लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ओवरऑल हमारे पास प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स की वैल्यू आती है। एक्जैक्टली सिमिलर लाइक एज वी डिड इन आवर प्रीवियस एग्जांपल, आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी हैव एन असाइनमेंट नंबर 6। थोड़ी सी छोटी मोटी चीज़ें जो है वो पीछे अगर रह गई हैं डिज़ाइन एग्जाम्पल के अंदर, जो पोस्ट टेंशन का था वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एक्जैक्टली सिमिलर एग्जाम्पल, जस्ट यहाँ पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस हैं इन असाइनमेंट, आपने सॉल्व करना है अच्छे तरीके से, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती, आई एम अवेलेबल एट द टाइम ऑफ क्लास, उसको अच्छे तरीके से देख लें, फिर इंशाल्लाह जो है वो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। Now in question we have to calculate all losses of 120 feet span, वही स्पैन है 120 फीट का, पोस्ट टेंशन बीम है आई सेक्शन का, एरिया ऑफ सेक्शन जो है वो 760 इंच स्क्वायर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम वैल्यूज, प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है प्री-स्ट्रेसिंग का, एरिया ऑफ प्री-स्ट्रेसिंग स्टील सेम है, कंक्रीट कंप्रेस्ड डिस्टेंस सेम, मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ 5000 KSI, मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टेंडन इज 29000 KSI, प्रोफाइल ऑफ टेंडन बेसिकली इज पैराबोलिक, जस्ट इसेंट्रिसिटी इज 18 इंचेस। अगर इसेंट्रिसिटी हमारी 18 इंच हो जाती है तो किस तरह से जो है वो लॉसेस इफेक्ट होते हैं या नहीं होते। हाउएवर द इसेंट्रिसिटी एट एंड्स इज इक्वल्स टू 0। ऑलमोस्ट सिमिलर एग्जांपल है जो कि हमने अभी डिस्कस किया अपने लेक्चर के दौरान, थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस हैं, उसको खुद सॉल्व करेंगे तो सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।